بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے خلاف ریلوے کالونی کے مکینوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین سڑک پر آئے اور آیا چندری گڑھ روڈ بند کیا۔ پولیس کی جانب سے بند سڑکیں کھلوانے کی کوشش پر صورتحال کشیدہ بھی ہوئی۔ آئی چندری گڑھ کے اطراف بدترین ٹریفک جام رہا۔ کچھ دیر قبل ہمارے نمائندے کاوش میمن بھی وہیں پر موجود تھے، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی بالکل دیکھیں، ریلوے کالونی کے مکین سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں آیا چندری گڑھ روڈ پر۔ یہاں پر بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہے۔ کیمرہ مین اگر افیق سے دکھا سکے، یہ شہر کا مصروف ترین علاقہ ہے آیا چندری گڑھ روڈ، جو مکمل طور پر اس وقت بند کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین نے دونوں طرف سے جو ٹریفک ہے بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، کیوں یہ مکین جو ہے وہ روڈ پر آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ بھائی یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے ریلوے کالونی کے مکین جو روڈ پہ نکلیں، کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے تو سر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن بنسبت اس سے پہلے کہ میں یہ اپنی ایک بات آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ کہیں بھی ہمارا احتجاج ہوتا ہے یا کہیں بھی ہمارے باہر کوئی احتجاج ہوتا ہے وہ قانونی طور پہ ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کسی کو مستی نہیں، نہ کوئی زبردستی ہوتی ہے، نہ کوئی بدماشی کرنے کے نہیں نکلتے ہیں۔ یہ سٹی ریلوے کالونی تقریباً سن 1947 سے آباد ہے، جو ہند اور پاکستان ایک تھے، اس ٹائم سے لے کے آج تک یہ آبادی یہاں پر موجود ہے۔ یہ برطانیہ کے دور کے یہاں کی جتنی آبادی ریلوے کی ہے یہ پاکستان نے نہیں بنائی، یہ برطانیہ کے دور کے کوارٹرز ہیں اور ابھی بھی ان پہ رہائش پذیر ہیں لوگ۔ کبھی یہ لوگ آتے ہیں کہ یہ غیر قانونی آپ نے دکان بنائی ہے، کبھی آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے غیر قانونی ٹھیلا لگایا ہوا ہے۔ جب ان کو پیسے ملتے ہیں تو اس ٹائم پہ ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تقریباً یہ میرا خیال ہے کوئی آج صبح سے انہوں نے نہ کوئی نوٹس دیا ہوا ہے دکانوں کو، نہ یہاں پر اندر ان کا کوئی عملہ آیا ہوا ہے۔ بغیر نوٹس کے انہوں نے بدماشی سے آ کر اندر پوری دکانیں سیل کی ہے، لوگوں کا کاروبار بن گیا۔ اس میں زیادہ تر ہوٹلیں بھی ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ ان میں جو چیزیں بنی ہوئی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، گرمی کا حالت ہے، لائٹ نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتی۔ آپ بتاؤ یہ غریب عوام کہاں جائیں گے؟ اگر ان کا روزگار بھی ان سے چھینا جائے تو یہ کیا سبق دیتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان مطالبے کے ساتھ ہماری جو جماعت، ہماری جو مطالبہ ہے وہ حکومت پاکستان، خاص کر پیپل پارٹی اور جو موجودہ حکمران ہیں، کہ وہ غریب آدمی کو اگر فیسلٹی نہیں دے سکتے، ان کو روزگار نہیں دے سکتے ہیں، تو اس کے بجائے یہ نہیں کہ ان کا روزگار چھینا جائے، ان کو تسلی سے اپنی روزگار دی جائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ جی ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں آئی بی اے سکھر میں ٹیچنگ کے امتحان میں فیل امیدوار استاد بننے پر بضد، سینکڑوں کی تعداد میں امیدوار آج دوسرے روز بھی پریس کلب پہنچ گئے ہیں۔ آئی بی اے سکھر میں ٹیچنگ کے امتحان میں فیل امیدوار استاد بننے پر بضد ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں امیدوار آج دوسرے روز بھی پریس کلب پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں اقصیٰ شاہد سے۔ اقصیٰ بتائیے گا مظاہرین کا کیا مطالبہ ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت کراچی پریس کلب کے باہر موجود ہوں اور احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت کراچی میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ لے رہا ہے۔ ہر ایک جو ہے وہ دھرنے جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہا ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر جو اب احتجاج کیا جا رہا ہے، یہ سکھر آئی بی اے کے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے ٹیچنگ پاس کے لیے جو ہے وہ ایک 2021 میں اپنا پیپرز دیے تھے کہ ان کو جو ہے وہ نوکری مل سکے، لیکن اس میں جو ہے یہ فیل ہو گئے تھے، ان کے مارکس جو ہے وہ کم آئے تھے، لیکن اب ان کو 2021 سے جو ہے وہ یہاں پہ یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ جو ان کی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو ساتھی ٹیچرز ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیے تھے وہ بھی فیل ہوئے تھے، لیکن انہیں جو ہے وہ نوکری دے دی گئی ہے، جبکہ ان کو نوکری نہیں دی گئی ہے۔ تو ان کا یہ احتجاج جو ہے وہ کب تک جاری رہے گا؟ 3 روز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج جو ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر اساتذہ موجود تھے اور سندھ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ جو احتجاج کے شرکا ہیں ان کا جو ہے یوں کر لیں کہ جو رخ ہے وہ اس طرف ہے، اور آج جو ہے وہ ان کا 4 رکنی کمیٹی وفد جو ہے وہ الیکشن کمیشن چیف سیکریٹری سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے گئے ہوئے صبح 11 بجے سے۔ شرکا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں کہ اب تک ان کے پاس کیا تفصیلات آ چکی ہیں۔ 11 بجے سے گئے ہوئے ہیں، آپ کے جو چیئرمین وغیرہ تھے دیدار لگا دی جیسے کہ آپ نے بتایا، تو بتائیں وہ کب تک آئیں گے اور اب تک آپ لوگوں کے پاس کیا اپڈیٹ آئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپڈیٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ صبح 11 بجے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس میں چیف سیکریٹری پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ چیف سیکریٹری سے ہماری جو ہے نا وہ میٹنگ ارینج کروائی گئی ہے، لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہے چیف سیکریٹری کا جو ایک بندہ آیا ہے، ان سے بات ہوئی ہے، ڈپٹی کمشنر بھی ساتھ ہیں، تو انہوں نے جو ہے ایک لیٹر دیا ہے، جو جہاں جس طرح ہماری بات ہوئی ہے ہمارے چیئرمین صاحب سے، تو اس نے بتایا کہ ایک لیٹر ملا ہے، تو وہ لیٹر لے کے جو بھی بات ہوئی ہے تو وہ ابھی ایس پی صاحبہ کی آفس، ایس پی ساؤتھ کی آفس میں گئے، وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے یہ تو نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ آ کے آگے کا لائے عمل جو بھی ہے، جو بھی اپڈیٹ ہے وہ بتائیں گے۔
अच्छा ये बताइएगा कितने मुतालबात लेके जो है वो आपके चेयरमैन दीदार लगारी जो है वो आगे की तरफ बढ़े हैं? जी हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो ये है कि सबसे अव्वल जो हमारा पहला मुतालबा ये है कि सिंध में एक पॉलिसी बनाई है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने सरदार अली शाह साहब जो कि तालीम के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ना सिंध के 18 तहसीलों में जो है हार्ड एरिया वहाँ पे बना के 33 से 39 जो है वो मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों को जो है वो पास करके आर्डर दिए हैं। बाकी जो हम हमारे साथ जितने भी सिंध के जो नौजवान हैं वहाँ पे जो है उनको सॉफ्ट एरिया का नाम दे के हमें नज़रअंदाज किया है। हमारा मुतालबा ये है कि सिंध एक है और सिंध में पॉलिसी भी एक होनी चाहिए। हम भी सिंध के रहने वाले हैं, हमें भी बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए। हम भी 33 से 39 नंबर लेने वाले उम्मीदवार हैं, हमें भी पास करके आर्डर दिए जाएँ। ये बताइएगा जैसे कि आपने कहा सॉफ्ट एरिया और हार्ड एरिया वालों को जब वो पास कर दिया, सॉफ्ट एरिया वालों को जब वो पीछे रख दिया, तो इसमें क्या फ़र्क है? क्या कोई कैटेगरी का फ़र्क है इसमें? इसमें मसला यह है कि सॉफ्ट एरिया और हार्ड एरिया, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये अभी इस टेन्यूअल में इन्होंने जो है ये हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया की पॉलिसी बनाई है, ये अब पहले कभी नहीं थी। ठीक है, तो ये हार्ड एरिया जो है ये साफ़ और सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बयान करूं कि ये है कि जो मिनिस्टरों के इलाके अपने इलाके हैं, जो MPAs के इलाके हैं, जहाँ पे इनको ये है कि वहाँ पे हमें वोट मिलेंगे, इलेक्शन में हमें फ़ायदा होगा, वहाँ पे इन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए उस इलाकों को जो है हार्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है और उन्हीं इलाकों के नौजवानों को जो है वो 33 नंबर लेने वाले को भी पास करके आर्डर दिया है। बाकी जो सॉफ्ट एरिया है जहाँ पे इनको लग रहा है कि मतलब हमारे इलाके नहीं हैं, तो इन्होंने जो है हम जैसे लोगों को, हम जैसे उम्मीदवारों को, जैसे मेरी भी 39 मार्क्स हैं, तो हमें सॉफ्ट एरिया में धकेल के नज़रअंदाज किया है। तो यही है सॉफ्ट एरिया और हार्ड एरिया का जो फ़र्क इन्होंने अभी बनाया है। कितने की तादाद में आप लोग इस वक्त घोटकी से कराची आए हैं? जी घोटकी से जो है हम तकरीबन जो है वो 100 के करीब हैं जो अभी उम्मीदवार आए हैं। बाकी जो पूरी सिंध से आए हैं वो तो आपको नज़र आ रहे हैं, तो माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में है। और अभी हमने पीछे जो है पूरी सिंध के और घोटकी के दोस्तों को रोका हुआ है, क्योंकि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है, पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे मुज़ाकरात कामयाब होंगे और हमारा जो ये जायज़ मुतालबा है ये मान के हमें जो है आर्डर दिए जाएंगे। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हमारी यहाँ पे प्रेस क्लब पे कैंप भी लगी हुई है और पीछे भी हमने जिस दोस्तों को रोका हुआ है हम उनको भी बुला लेंगे। पूरी सिंध से लोग आएंगे, दोस्त आएंगे और हम इंशाल्लाह यहाँ पे जो है एहतजाजी धरना देंगे और वज़ीर आला हाउस और सिंध असम्बली की तरफ जो है वो मूव होंगे। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जब 11 बजे से आपका जो है वो वक्त गए हुए बात करने, तो अब तक आपको क्या लगता है कितनी देर में वो आ जाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं 3 बजे का वक्त है अब। जी अभी जो है वो मेरी पर्सनल बात हुई है, तो उन्होंने चेयरमैन साहब और जो भी हमारा वफद गया है तो वो उन्होंने बताया कि अभी हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह कैंप पे अभी ज्वाइन करेंगे। वो अभी पहुंचने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वो आ जाएं, उसके बाद ही चेयरमैन साहब पूरी हकीकत बता देंगे कि आगे का क्या करना है। जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब आ जाएंगे तो पता चलेगा कि मुज़ाकरात क्या तय हो पाए हैं, मुज़ाकरात हो भी पाए हैं या नहीं। ये 3 रोज़ से जो है वो धरने का सिलसिला जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर चल रहा है। इनके मार्क्स कम है, इनका ये कहना है, ये शिकायत ये सामने आ रही है कि जो हमारे MNA MPs हैं उन्होंने जो है वो कम मार्क्स वाले टीचर्स को इसलिए जो है वो आगे की तरफ बढ़ा दिए कि उनको आगे जो है एक वोट की उम्मीद जो है वो उनसे ज़ाहिर नज़र आ रही है। जबकि ये लोग हैं, इनसे अगर उनको वोट की उम्मीद नज़र नहीं आ रही तो इन्हें जो है वो आगे पास नहीं किया गया, इन्हें जो है वो परमानेंट नौकरी नहीं दी गई है, इन्हें टीचर्स के टेस्ट में जो है वो आगे नहीं निकाला गया है। वक्त जो है वो गया हुआ है, इस वक्त सुबह 11 बजे से जो है वो बातचीत चल रही है। अभी तक जो है वो कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आई है ऐसी, लेकिन ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर आएंगे और कोई ना कोई नई ताज़ी खबर लेकर आएंगे कि क्या मुज़ाकरात तय होते हैं या फिर उसमें जो है वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ होता है। डिप्टी कमिश्नर कराची भी मौजूद हैं, कमिश्नर ऑफिस के जो है वो दफ्तर गए हुए, चीफ सेक्रेटरी से बात करने, अमला 4 रुकनी कमेटी का गया हुआ है। जो इनकी PSC के धरने की इसकी जो है वो यूँ समझ लें कि जो सरबरा हैं चेयरमैन दीदार लगारी, वो भी जो है वो साथ ही साथ गए हुए हैं। तादाद में अगर आपको यहाँ पर दिखाती चलूँ तो ये जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो असाज़ा की तादाद यहाँ पर इतनी मौजूद है। हम ये देख रहे थे कल जो है वो बड़ी तादाद में असाज़ा कम से कम भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस ने जो है वो भारी नफरी कल के रोज़ जो है वो तैनात की गई थी। लेकिन आज इनका जो है वो कहीं जाने का रुख नहीं है, आज इनका कहीं जाने का इरादा नहीं है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब तक जो है इनके चेयरमैन साहब जो है वो गए में बात करने चीफ सेक्रेटरी से, जब तक
तक ये जो है वो पुरअमन यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुरअमन एहतजाज ही रिकॉर्ड करवाएंगे, लिहाजा इनके जो है वो मुज़ाकरात माने जाएँ, इनकी जो है वो बात यहाँ पर आगे सुनी जाए तो फिर ये पुरअमन एहतजाज करेंगे। गोटकी से ये यहाँ पर आए हुए हैं, 2021 का ये मामला जो है वो चल रहा है, एहतजाज का ये करते जा रहे हैं। इनको जो है वो पास नहीं किया गया और जो दूसरे किया गया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। डॉक लेबर बोर्ड तहलील करने के फैसले के खिलाफ धरने का 7वां रोज़ है। हुकूमत की जॉइंट एक्शन कमेटी से राब्तों में तेज़ी। चेयरमैन केपीटी सैयदैन रज़ा ज़ैदी ने डॉक लेबर की जॉइंट एक्शन कमेटी को मुलाकात की दावत दे दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, अब जो नई पेशरफ्त है वो यही सामने आ रही है, क्योंकि जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो अरकान इस्लामाबाद गए थे उनके आने का इंतज़ार हो रहा है। चेयरमैन केपीटी की जानिब से जो है वो राब्ता कायम हो चुका है। आज इनसे मुतवक्का किसी भी टाइम जो है चेयरमैन केपीटी जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ नियाज़ साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जाने। नियाज़ भाई, क्या उम्मीद है, कब तक मुलाकात मुतवक्के है? जी, जॉइंट एक्शन कमेटी को बाकायदा इतला मिली है कि आप चेयरमैन साहब ने हमें इतला दी है कि आज हो सकते हैं मीटिंग मुतवक्का हो। हमारे और अरकान भी इस्लामाबाद से आमद है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आएंगे और हमारी मीटिंग इंशाल्लाह उम्मीद है कि मीटिंग हो जाएगी। और चेयरमैन साहब, बल्कि कल हमारे ऐसे एक मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग, इससे बड़ी मीटिंग है, जिसमें मिनिस्टर साहब हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं और चेयरमैन होगा जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी मेंबरान हैं वो सारे होंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी के और हमारे जितने भी 6 यूनियन है उसके अहदेदारान, जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान, सब हम एक साथ बैठेंगे और इसमें लाएमल हम तय करेंगे। अगर उसके बावजूद भी हमारा कोई मसले हमारे हल नहीं होते, हमारे जो आईनी हक है हमारा वो मसला हल नहीं हो रहा है, तो फिर ABC जो हमारा प्लान है फिर हम उसमें इंशाल्लाह लाएमल तय करेंगे। ये तो हमने फर्स्ट गेट बंद किया हुआ है। इंशाल्लाह अगर हमारी बातों पे हमारे मामलात है ये हल नहीं होता है तो हम गेट 2 भी बंद कर देंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये आप लोग का कहना है कि ये गेट आपने बंद किया हुआ, लेकिन बात तो ये है कि इस वक्त ये गेट तो उन्होंने खुद अपनी तौर पे बंद किया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस वक्त गेट तो चाहिए, लेकिन प्लान दूसरा क्या हो सकता है? पोर्ट पे इस वक्त काम जारी है? हाँ, पोर्ट तो ऑपरेशन चल रहा है। बाकी जो मामलात हैं, जो मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल मुतमईन होकर हमें ये कहा कि जो आपके काम है वो इंशाल्लाह हम करके देंगे। उसने वादे किए हैं, सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हुई हैं, तहरीरी कोई बात नहीं अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, जैसे नियाज़ साहब जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इनका भी यही बताना है कि आज चेयरमैन केपीटी ने इनको बुलाया है, वहाँ भी मुलाकात होगी, लेकिन उससे बड़ी बैठक जो है वो कल होने जा रही है, जिसके अंदर कादिर पटेल जो कि कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर की जो कायमा कमेटी उसके चेयरमैन हैं वो यहाँ मौजूद होंगे, उनके साथ मिनिस्टर होंगे, तमाम जो यहाँ की एसोसिएशन या जो यूनियन है उनके अहदेदारान होंगे, तमाम केपीटी के अहदेदारान होंगे, उनके साथ बैठ के कल एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है जो कि कराची में होनी है। उसके बाद जो लाए अमल तय होगा तो यकीनन अगर वो कहते हैं उसमें भी डेडलॉक बरकरार रहा तो फिर उसके बाद प्लान A, प्लान B और प्लान C की तरफ भी जाया जा सकता है। जी, कराची गुड्स कैरियर्स ने पंजाब की जानिब से कल हड़ताल की हिमायत कर दी। कायम मकाम सदर मलिक शेर खान कहते हैं, हम एक्सल लोड के हामी हैं, मालबरदार गाड़ियों पर इजाफी लोड नहीं डालने चाहिए। कराची गुड्स कैरियर्स एसोसिएशन को भी मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए गुड ट्रांसपोर्टर जो लाहौर के, उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। वजूहात क्या है जानते हैं। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के कायम मुकाम जो सदर मलिक शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजूहात हैं कि गुड ट्रांसपोर्टर जो है लाहौर में स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्या उनके मुतालबात हैं? पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले ने पूरे पंजाब के अंदर और KPK के अंदर पोजीशन ये आ गई कि जगह जगह पे ट्रांसपोर्टरों के साथ जुल्म हो रहे हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हम अपने ट्रांसपोर्ट बरादरी के साथ हैं और जहाँ जाके ये हर बीड़ के ऊपर जुर्माने मोटरवे कर रही है, कस्टम वाले जगह जगह पे हमारी गाड़ियाँ रोक रहे हैं और हर जगह पे पेट्रोलिंग वाले गाड़ियाँ रोक कर उनको जनाब अली पर्चे कर रहे हैं, उनके ऊपर 279 का पर्चा दे के गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं। वो जाके सुपरदारी पे गाड़ी छूटती है। तो हम तो भाई इनके पीछे बिल्कुल जो कदम उन्होंने उठाया पंजाब वाला ने, हम उनके साथ हैं। और रहा मसला एक्सल वेट का, एक्सल वेट
بہت اچھا چل رہا ہے اور ایکسلریٹ کے ہم حامی ہیں. اور یہ انتظامیہ کو موٹر وے NHA کو میں بابر کرانا چاہتا ہوں, جو بھی وزن والی گاڑی جا رہی ہے اس کو فوراً واپس کرو اور مال اس کو اتارو. ایسے لوڈ گاڑی روڈ کے اوپر نہیں جانے دو, جو گاڑیوں کو دیکھ کے اور لوگ بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں. آج ہم نے کچھ برادری بلائی ہوئی ہے اور شام 4 بجے ہماری میٹنگ ہے, اس سے جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ شام کو آپ کو بتا دیں گے. جی جیسے کہ آپ نے سنا, یہاں پہ کراچی گڈس کیریئر ایسوسی ایشن قائم مقام صدر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایکسل لوڈ پہ عمل درآمد پہ ہم حامی ہیں, لیکن جو لاہور میں اسٹرائک ہو رہی ہے دیگر مسائل ہم ان کا ساتھ دیں گے, لیکن کراچی میں گڈس کیریئر والے ہڑتال نہیں کریں گے. جی. مہنگی بجلی کے خلاف تاجروں نے 3 گھنٹے کی علامتی ہڑتال کا اعلان کر دیا. کاروباری سرگرمیاں بند کرنے کی دھمکی دے دی. صدر الائنس آف مارکیٹ ایسوسی ایشن نے کل ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. رپورٹ دیکھتے ہیں کاوش میمن کی. مہنگی بجلی کے خلاف تاجر سڑکوں پر آنے کے لیے تیار, کاروباری سرگرمیاں بند کرنے کی دھمکی دے دی. صدر الائنس آف مارکیٹس ایسوسی ایشن کے صدر فہیم نوری کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں. اگلے مرحلے میں 3 گھنٹے کی علامتی ہڑتال کریں گے. تمام مارکیٹوں میں جنرل ورکر اجلاس کے لیے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ آپ اجلاس کریں, اور تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو نیکسٹ مرحلے میں ہم شٹر ڈاؤن کریں گے, 3 گھنٹے کی ایک علامتی ہڑتال کا اعلان کریں گے اپنی مارکیٹوں میں. فہیم نوری بولے کہ مہنگی بجلی کا بوجھ برداشت کرنے کی سخت نہیں رہی, حکومت بجلی کے ٹیرف کو کم کرے. نیپرا سے ہماری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ آپ اس ٹیرف کے اوپر غور کریں, اور جو کہ الیکٹرک کی جو یہ بدماشی ہے, وٹ ایور یہ IMF کے ایما پہ کیا جا رہا ہے یا حکومت پاکستان کر رہی ہے, لیکن چونکہ بزنس کمیونٹی, شٹر پاور اور عام آدمی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ریلیف نہ دیا تو احتجاج پر مجبور ہوں گے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. IPPs قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. MQM نے IPPs کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. قرارداد اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اور نجم مرزا کی جانب سے جمع کرائی گئی. تفصیلات جانیں گے شعیب مختار سے. شعیب بتائیے گا, قرارداد جمع کرائی گئی ہے؟ جی بالکل, IPPs قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. MQM نے IPPs کے خلاف جو ہے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی ہے. یہ قرارداد جو ہے سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اور MQM پاکستان کی رکن سندھ اسمبلی نجم مرزا کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے. قرارداد کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادائیگیاں ہوتی رہیں گی تو ملک کی بقا کا مسئلہ ہو جائے گا. صنعتی و گھریلو بجلی صارفین کے لیے فی یونٹ قیمت ناقابل برداشت ہو چکی ہے. IPPs کے ساتھ معاہدوں ادائیگیوں سے معیشت پر بوجھ ہے, جبکہ IPPs کے ساتھ ماضی میں غلط معاہدوں سے ٹیرف ناقابل برداشت ہے. IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے. MQM پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے. آج جو ہے MQM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی نجم مرزا اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے یہ قرارداد جو ہے سیکریٹری سندھ اسمبلی کو باقاعدہ طور پر جمع کروا دی ہے. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. سماجی رہنما سارم برنی کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا. سندھ حکومت نے FIA کی درخواست پر ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا. وزیر سوشل ویلفیئر طارق علی تالپور کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی مشاورت کے بعد ویلفیئر کے انتظامات کا فیصلہ کیا جائے گا. طاہا ملک سے تفصیلات لیں گے, بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیں سماجی رہنما سارم برنی کی جانب سے جو ہے گزشتہ مہینوں میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کرائم کیا گیا تھا, جس کے مطابق جو ہے بچوں کو بیرون ملک جو ہے وہ اسمگل کیا جا رہا تھا, جس کے بعد FIA نے جو ہے اس کا نوٹس لیا ہے اور FIA نے جو ہے سندھ حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ سارم برنی ٹرسٹ کے تمام در معاملات جو ہے وہ اپنے انڈر لے لیں. تو اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سوشل ویلفیئر منسٹر کے جو منسٹر موجود ہیں طارق علی تالپور. ابھی یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی کیس جو ہے وہ کورٹ میں چل رہا ہے, ابھی دیکھتے ہیں اس کا ڈیسیشن کیا تھا, لیکن انڈر لا جو سوشل ویلفیئر ہے وہ میں نے اپنے جو ڈائریکٹر ان کو ڈپیوٹ کیا ہے کہ بھائی آپ دیکھیے اس ایشو کو, کیا مسئلہ ہے, کس طرح ہم ٹیک اوور کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہمارے لا اکارڈنگ ٹو لا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہم اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ٹرسٹ بنایا ہوا, یہ ٹرسٹ جو ہے وہ جیسے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے تھرو وہ چلتا ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کی حد تک تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کرائم ہے اور جو بچے وہاں پہ سیف ہے یا نہیں ہے, یا ان کو کوئی فیسلٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی, اس حد تک تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور جو بھی آگے اکارڈنگ ٹو لا, اکارڈنگ ٹو رول ہوا
तो हम इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह हम उसको देख लेंगे। तारिक अली तारवा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तफसीलन हमें बताया कि जो सारिम बर्नी ट्रस्ट है ये बेसिकली जो है वो इंडस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर रजिस्टर्ड है, और इसका जो ऑर्फनेज डिपार्टमेंट है वो फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। तो ऑर्फनेज जो है उसकी देखभाल के लिए उसके जो तमाम मामला हैं उसके लिए जो है वो कार्रवाई की जा रही है, और मजीद भी कोर्ट से मसला हल होने के बाद इसको मुकम्मल तौर पर जो सारिम बर्नी ट्रस्ट है इसका मसला हल किया जाएगा और बेहतर नताइज हासिल किए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आस्कानी की हिदायत पर तजावुज़ात हटाओ प्रोग्राम पौधे लगाओ मंसूबे पर काम जारी है, जिसके तहत मुख्तलिफ सेक्टर्स की ग्रीन और साइड बेल्ट से तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। इस हवाले से आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ टाउन हुकूमतों की तरह बल्दिया टाउन में भी 1 लाख पौधे लगाकर भरपूर तरीके से शजरकारी मुहिम का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। हब रिवर रोड पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में पौधे लगा दिए गए हैं, और इसके साथ साथ अंदरूनी इलाकों पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन पानी की कमी के साथ साथ शहर में जो हरियाली का फ़रोग़ है उसमें रुकावट तजावीज़ात भी आ रही हैं, जिसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है। अब्दुल करीम आस्कानी चेयरमैन बल्दिया टाउन की ज़ेर निगरानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आपकी कहाँ कहाँ चल रही है और इस हवाले से क्या पेशरफ सामने आई है और वहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको ये एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से बताता चलूँ, जिसमें बल्दिया टाउन के अंदर सेक्टर 8 है, सेक्टर 9 है और सेक्टर 12 है, और इसके अलावा गुलशन गाजी है, जो ये मेन एरिए हैं जिन पर बहुत सारी लोगों की कंप्लेन थी हमारे पास, और ये सुप्रीम कोर्ट के इसमें वाज़े अहकामात हैं, और CM सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब की तरफ से भी हमें ये वाज़े अहकामात हैं कि जहाँ पर आपको इंक्रोचमेंट हो, जहाँ आप लोगों की तकलीफ़ और परेशानी का बायस बने या उनके रोड वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए मसाइल पैदा करे, तो वहाँ से आप उनको रिमूव करवा दें। अर्बन फॉरेस्ट का बड़ा रुझान है और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अर्बन फॉरेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। बल्दिया टाउन में इस हवाले से क्या हो रहा है? जी, जो आपने अभी जो हमारे पास जो इंक्रोचमेंट हुई है वो टोटली तकरीबन सेंट्रल आइलैंड जो कहलाता है, जो सेंट्रल जो ग्रीन बेल्ट कहलाता है, उसके ऊपर बहुत सारे तजावुज़ात थी, उनको हमने रिमूव करवाया। अब इंशाल्लाह ताला हम इसके लिए इसकी मुकम्मल सफाई करवा के यहाँ पर जो उसको गार्बेज वगैरह है उसको हटवा के उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला एक प्रॉपर अर्बन फॉरेस्ट की तरह इसको इंशाल्लाह बनाएंगे। बिल्कुल कहा यह जा रहा है अब्दुल करीम आस्कानी की जानिब से कि तजावीज़ात साफ़ की जा रही हैं। तजावीज़ात के बाद जो अराजी वागुजार होगी वहाँ पे बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। अर्बन फॉरेस्ट के सिलसिले में जो है काम किया जाएगा। पहले ही ऐलान ये कर चुके हैं कि 1 लाख पौधे जो है वो बल्दिया टाउन में लगाने का इनका अज़्म है और उस पर बदस्तूर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, सदर की मार्केटों के अतराफ ट्रैफिक के मसाइल निपटने के लिए DIG ट्रैफिक का ताजरों के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। अहमद नवाज चीमा ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ एक्शन लेती हैं, ताजरों के साथ मिलकर ट्रैफिक के मसाइल हल करेंगे। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल देखें, सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन के ताजरों ने DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा से मुलाकात की है, अपने कंसर्न्स भी शो किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद साहब बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो सदर है वो हमारा सबसे बिज़ी पॉइंट है और इसमें हज़ारा दुकानें हैं और उसमें तकरीबन लाखों की तादाद में लोग जो है ना वो रोज़ाना यहाँ विज़िट करते हैं, और उसमें अमूमन लोग अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी के ऊपर आते हैं, लेकिन क्योंकि कंजस्टेड जगह है तो इसलिए पार्किंग की तंगी होती है सब जगह पे ही, और कई जगहों पे जो है वो चार्ज पार्किंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं और उनको रेगुलेट भी वो करते हैं। हम भी जहाँ पे जो है वो इलीगल पार्किंग हो जाती है या नो पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी करके चला जाता है तो उसमें जो है उन गाड़ियों को लिफ्ट करते हैं, और इस सिलसिले में हम जो ये पार्किंग की जगह मुख्तस की गई हैं उनकी बेहतरी के लिए सदर अलायंस के साथ मिलके हमने एक प्लान किया है। इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल दरामद करने से यहाँ पार्किंग के मसाइल में जो है ना वो खातिर खा कमी देखने में आएगी। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इस सिलसिले में सदर और इतराफ़ के इलाकों में जो पार्किंग के मसाइल है उनको हल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कोशा है। जी, कराची समेत सिंध भर में नर्सिस की कमी को पूरा करने के लिए तमाम नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कॉलेजेस में शाम की क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड नजमा मंगी कहती हैं अब शोबा नर्सिंग में बेहतरी आएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम।
जी देखिए, बिल्कुल नर्सेज की फलाह बहबूद और शोबा सेहत में बेहतरी लाने के लिए कराची समेत सिंध भर में शाम की क्लासेस भी शुरू करने पर गौर किया जा रहा है और हो सकता है ये जल्द फैसला भी हो जाए, जिसकी वजह से शोबा तिब में बेहतरी आएगी। और उसके साथ साथ नर्सेज जो कि हर साल कम तादाद में बन रही हैं, उनकी तादाद में भी कई गुना इजाफा हो जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग की डायरेक्टर नजमा मंगी साहिबा। उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। हमारे पास जो नर्सेज का वर्क फोर्स है उसको हम रिड्यूस करने के लिए हमने 2 ऑब्जेक्टिव पे अर्जेंट बेस पे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, और दूसरा जो है SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो 2030 में हमें पूरी करना है। उसके लिए जो हमारे पास जो इस वक्त नर्सेज की शॉर्टेज है, हमारे पास जो सिंध में नर्सेज का रेशियो है वो 28,000 है, और जबकि हमें 2030 में हमने जो अचीव करना है वो करना है 2 लाख नर्सेज। अभी कितनी नर्सेज बन रही हैं हर साल, और जब इवनिंग क्लासेज शुरू करेंगे तो कितनी नर्सें मज़ीद हमें मिल सकेंगी? इस वक्त जो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर में है वो है 1075, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर हमारे पास 86,000 हैं, सॉरी 86 हैं प्राइवेट इदारे। हमारा दूसरा सूबा होगा पंजाब के बाद जहाँ पे इवनिंग क्लासेस पहली दफ़ा शुरू हो रही हैं, और नर्सेज का क्या तासुरात है, कितनी खुशी हो रही है कि जो रह जाती थी बेचारी अब दाखिला मिलेगा उनको, शाम की क्लासेस होंगी? नर्सेज के अलावा जो हमारा सोशल एक इदारा है, हमारे जो लोग हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम लोगों के इस वक्त जो नर्सेज की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना डिजीज़ का रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे आपने कोविड में देखा तो हमारे पास नर्सेज की बहुत ज़्यादा शार्टेज थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर नजमा मंगी साहिबा जो कि डायरेक्टर नर्सिंग है सिंध एग्जामिनेशन बोर्ड की। इन्होंने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया कि नर्सेज की जो कमी है वो भी पूरी हो सकेगी जब इवनिंग क्लासेज होंगी, और जबकि जो हर साल मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हो रहा है तो उनको भी कम करने में ये नर्सेज बड़ा अपना एक किरदार अदा करेंगी। तो सिंध में जो और कराची में जो शाम की क्लासेज हो रही हैं इससे बड़ा फ़ायदा होगा। जी, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ख़वातीन फायर फाइटर्स की तैनाती की गई है। सिंध रेस्क्यू 1112 की जानिब से 72 ख़वातीन फायर फाइटर्स को भर्ती कर लिया गया है। ख़वातीन फायर फाइटर्स कैसे काम कर रही हैं, अनुषा जाफरी से जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो ख़वातीन फायर फाइटर्स भी जो है वो अब आग बुझाएंगी, और ये रेस्क्यू 1112 की जानिब से ख़वातीन को हायर किया गया है। 72 ख़वातीन हैं जो कि काम कर रही हैं रेस्क्यू का। हमारे साथ आयशा खान मौजूद है। आयशा, ये तो एक कहते हैं ख़वातीन कुछ कर नहीं सकती, लेकिन रेस्क्यू 1112 ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि ख़वातीन को चांस दिया। क्या क्या ख़वातीन कर सकती हैं आपकी रेस्क्यू 1112 की? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको रेस्क्यू 1112 के इदारे में खुश आमदीद। ख़वातीन देखें, जिस तरह हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, इसी तरह रेस्क्यू 1112 सिंध ने भी ख़वातीन को ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो ऐसी जॉब में आ सकें जिसको एक नामुमकिन समझा जाता है ख़वातीन के लिए। और इसका मैं आपको हवाला देती चलूँ कि पंजाब से ये ख़वातीन जो है 6 महीने की ट्रेनिंग करके आई हैं, और इस अनथक ट्रेनिंग के बाद वो इस काबिल हैं कि वो हर इमरजेंसी को पर रिस्पॉन्स कर सकें और हर चैलेंजिंग सिचुएशन को समझ सकें। अच्छा आयशा, ये बताइएगा, कहीं आग लग जाती है तो ख़वातीन ये पहुंच जाती हैं, कहीं बच्चा कोई नाले में चला जाता है तो क्या उनको भी रेस्क्यू कर सकती हैं? जी जी, और अभी यहाँ पे काफ़ी सारे फायर फाइटिंग के ऑपरेशन हुए जिसमें ख़वातीन जो है लीड में थी, सफ़े अव्वल में खड़े होकर उन्होंने मर्दों के साथ मिलकर मेल रेस्क्यूअर्स के साथ मिलकर फायर फाइटिंग की है। तो इसी तरह ड्रॉनिंग के केसेस भी होते हैं, तो उसमें भी क्योंकि ये ट्रेनिंग वो करके आई है वाटर रेस्क्यू व्हीकल्स के मुताबिक, तो इन तमाम ट्रेनिंग के बाद ख़वातीन इतनी जो है इतनी एक्टिव हैं और वो हर इमरजेंसी पे रिस्पॉन्स करती हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो है वो आयशा फारूक जो है वो मौजूद थी, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि ख़वातीन फायर फाइटर्स जो है वो अब बच्चा अगर नाले में भी डूब जाए, ड्रॉनिंग के केसेस हैं, उनको भी रेस्क्यू करेंगी। आग लग जाएगी तो ये ख़वातीन वहाँ पर भी आपको नज़र आएंगी। और हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो ऐसा हुआ है कि जो ख़वातीन फायर फाइटर्स हैं वो भी अब जो है वो आ चुकी हैं मैदान में, और अब मर्दों के साथ साथ खाली मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी जो है वो ऐसे केसेस को हल करेंगी। जी।